ધોરણ 9 વિષય હિન્દી पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग की खिड़की से एक रातना पाठની શરૂઆત કરીએ। એના આગળના વિડીયોની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તેમનો પરિચય ભણી ચૂક્યા છીએ। જોઈએ, कुछ जगह है होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। કંઈક જગ્યાઓ, કંઈક આકર્ષણનું જે સ્થળ હોય છે તે એવું હોય છે જેને આંખની નજરે એકવાર જોઈએ છીએ ત્યારે ત્યાં ચોંકી ઉઠીએ છીએ। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। અને ધીમે ધીમે તે સ્થળથી આપણે પરિચિત થઈએ છીએ ત્યારે આપણે ઉદાસીન એટલે અનમતા થઈ જાય છે। ગુલમર્ગ એસી જગહ નહીં જ્યાં આપણને ગમતું હોય અને ફરવું હોય તો એ સ્થળ તો આપણને ગમે છે, પણ જે સ્થળને આપણે જોયું નથી અને એ પ્લેસને આપણે ઓળખવાનું છે, ત્યાં પરિચિત થવાનું છે, તો ગુલમર્ગ એવું સ્થળ છે નહીં। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया था तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। હું પહેલી વાર ગુલમર્ગ ગયો હતો ત્યારે મને કંઈ પણ અસાધારણ લાગ્યું ન હતું। લગા એક ખુલ્લા સપાટ મેદાન, દેવદારો કે ઘને ઝુરમટ ઓર બસ। ત્યાં લાગ્યું હતું કે એક ખુલ્લું સપાટ મેદાન હતું, દેવદારોના ઘટાદાર વૃક્ષો હતા। તબ મેં ઘંટે ભર મેં સાલા ગુલમર્ગ દેખાયા था। અને ત્યારે હું કલાકોની અંદર આખો ગુલમર્ગ છે તે દેખીને આવ્યો હતો। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाए, उससे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। અને જ્યારે પહેલી વારમાં મને અહેસાસ થયો, જ્યારે મને પહેલી વારનો અહેસાસ થયો ત્યારે થાય છે કે એ સ્થાનને એકવાર તો શું પણ પૂરા સ્થાનને કભી દેખા નહીં જા सकता है कि આખા સ્થળને પૂરી રીતે જોઈ શકાય તેમ છે નહીં। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्तियों की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखता रहा है। કે જ્યારે ગુલમર્ગની સાથે આત્મીયતા ધીરે ધીરે એટલી ગહેરી બની જાય છે કે अपने को એ સપાટ મેદાનની અંદર પોતાનો હિસ્સો હોય એવું લાગતું હતું। કાંપતી તિતલિયા, ઉડતી હોય તેવી પતંગિયાઓ, ઉઠતે વાદળોનો ગડગડાટ હોય, બરફ છે ચમકતી પહાડીઓ, વરસાદ એટલે કે છે કે જે બરફબારી શરૂ થવાની કે બરફ વરસવાનો શરૂ થતો હોય। દૂસરી ઓર વહાં પૂરા વિસ્તાર, અને બીજી બાજુ આખા વિસ્તારને જોવામાં આવે છે। जिसमें वह स्वयं भी रहता है, અને ત્યાં પોતે પોતાનું સ્થાન પણ ત્યાં એણે એકત્ર કર્યું છે। उसे अपने में से समाया लगता है, અને પોતાની અંદર સમાયેલો લાગે છે। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याए घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધીની એટલે કે સવારમાં સૂર્ય ઉગે ત્યારથી લઈને સાંજની આથમે ત્યાં સુધી घना कोहरा ने पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि दोनों संध्या इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से है बिछुड़ना का। જ્યારે ગુલમર્ગથી લોકો છૂટા પડે છે ત્યારે પોતાનાથી દૂર છૂટા પડતા હોય, बिछुड़ता હોય એટલું દુઃખ લાગતું હોય છે। उस रूप में जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। અને પોતાનાપણું હોવા છતાં પણ અપરિચિત એટલે અજાણ્યું હોય તેવું લાગતું હતું। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। गुलमर्गની અંદર આપણા સપનાઓ છે ફૂલની જેમ ખીલી ઉઠતા હોય છે। हरियाली के आर पार, हरियाळीની આજુબાજુ, लाल लाल छतों के ऊपर लाल लाल
જે નળિયાવાળી છતો છે તેની ઉપર આકાશની અંદર आंखें मुग्ध होकर देखती हैं અને એક મુગ્ધ હોવું એટલે ચોંકી જવું, બધી બાજુ નજરો છે એક સરખી ટકી રહે છે। ફૂલોं में नए नए रंग भर जाते हैं, ફૂલોની અંદર રંગબેરંગી ફૂલો ભરાઈ જાય એટલે કે રંગો ભરાઈ જાય છે। વાતાવરણ में नई नई कोपलें फूटाती है, અને વાતાવરણની અંદર નઈ નઈ કોપળો ફૂટી આવે છે। हर क्षण एक नए अनुभव नए रोमांच की सृष्टि होती है, हर पळની અંદર હરેક पळની અંદર नवो अनुभव और रोमांस की सृष्टि बने छे। बादलों के पोटिकों के नीचे लोग बाएं फैलाकर घास पर बैठे हैं, अने वादळों ने पोटिको एटले के छे मैदाननी अंदर लोको छे हाथ फैलावी अने घासनी अंदर बैठेला छे। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है, अने दूर दूर सुधी जे सैलानियों की पंक्ति एटले के छे घोड़े सवारो होय तेनी एटले के छे के जे कतारो लाइनो छे ते दौड़ती नजर आवी रही छे। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं, अने रंगोना जे बिंदुओ छे ए जे मेघधनुषनी जेम रंगो छूटा छवाया होय एवी रीते विखरायेला छे। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती हैं, अने एकाएक प्रकाशनी अंदर नाना नाना पारदर्शक एटले पाणीना टीपाओ जे वरसाद स्वरूपे पड़वा लागे छे। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है, अने रंगीन वातावरण जे बिंदुओ छे आखा विस्तारनी अंदर फैलाई जता होय छे और अपने को समेटने लगता है, अने पोतानी अंदर पोते भींजवी रह्या होय एवुं लागी रह्युं छे। हरियाली का सपना कुहासे से फूल में बदल जाता है, हरियाळीनुं सपनुं छे ए कोहरानी अंदर एटले के छे अचानक कोहरो केम थई गयो अने भीનું થઈ ગયું હોય એની અંદર આખું મેદાન છે તે ભીનું થઈ જાય છે। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, अने मैदान छे ते लीली पछेड़ी छे ए ओढ़ी ले छे। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, चारों तरफ झांकळ अने पाणीओना बिंदुओनुं जे धूंधळुपणुं वातावरण थई जाय छे। बेबस होकर फैली पगदंडियों की पतली पतली नरम बाहें, बेबस एटले असहाय, पगदंडियों एटले के लोगों के लगातार चलने से अपने आप का बना रस्ता, वाराघणिया चालेलो होय अने केम पगला पड़ी गयो होय तेवो रस्तो होय एने कहेवाय छे फैली हुई पगदंडियों। जब तक बादल बरसेगा, ज्यां सुधी बादल वरसशे बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल विस्मृत और निढाल, त्यां सुधी वादळो वरसशे त्यां सुधी बाहों फैलायेली रहेशे, कोमळ छे ते विस्मृत छे अने निढाल ढाळमां ढळेली छे। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, जो सूरज उगशे तो फूलो छे एनो एक सपनु एटले के छे फूल खिलवानी एक नवी रोशनी जागशे। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते हैं, आकाशनी अंदर नाना नाना जे द्वीप एटले टापुओ छे ए वादळोनी अंदर फरी रह्या छे। भेड़ और बकरियों के रेवड़ पगदंडियों पर टक जाएंगे, अने भेड़ बकरिया एटले के छे जे बकरी अने खेटाओ छे तेनी रेवड़ पगदंडिया एटले के एनो ते समूह होय छे, टोळानो समूह एना पगलाओ पड़वा लागे छे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत आता है, दिवस रातनी राह जोतो होय तेवुं प्रतीत देखाई रह्युं छे। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, अने जो रात थशे એટલે બધું ખામોશી થઈ જશે, કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં દેખાશે નહીં। मैदान की वह खामोशी भी જે दिन के समय इतनी वाचाल होती है, અને મેદાનની પણ એટલી ખામોશી જે દિવસના સમયે વાચાલ થઈ જાય છે, બધું શાંત, દિવસમાં એટલી હલચલ હોય છે અને રાત પડતી સમય થતો જાય તેમ તેમ તે શાંત પડતું જાય છે। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी, गुलमर्गनी ए रात छे मने क्यारेय भूलाशे नहीं। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, होटलनी खिड़कीनी अंदर उभेलो हतो। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तक बढ़ती आ रही थी, दूरथी मारी नजीक एक बरसती घटानुं जे झापटुं छे ए मारा तरफ तेजथी वधी रह्युं हतुं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, हूँ राह जोई रह्यो हतो कि जब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले, ने ज्यां सुधी ए मारे सुधी पहुँचे अने मने पोतानी अंदर समावी ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। वरसती घटानी अंदर भींजाવું એનું સુખ મેં ક્યાંક ઓછું જોયેલું છે।
घटा ऊपर से गिराए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। घटा એટલે કે જે ઝાપટું છે તે પોતાની અંદર આવે અને વ્યક્તિને પોતાની અંદર સમાવી લે। ये इससे अलग स्थिति है, एनाथी विरुद्ध स्थिति गणाय छे। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने या और उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। जे घटानो जे संकेत इशारो छे मारी सामे आवी रह्यो हतो अने मारी सामे आवता आवता मने बराबर एनी सामे ऊभो रही सक्यो अने हूँ खिड़कीनी अंदर ऊभो हतो अने एने बोलावी रह्यो हतो कि आ मेरे तुझसे कमजोर नहीं हूँ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी, पवन वधारे हतो मगर तेजी से नहीं बढ़ रही थी। पवन वधारे हतो पण जे झापटू छे ए स्पीड में वधी रह्यु हतुं नहीं। हालांकि तूफान बहुत उठा था अने वावाझोड़ानुं तूफान छे ए सर्जाई चूक्युं हतुं। बार बार जोर का गर्जना होती थी अने वारंवार जोरथी वादळोनो गड़गड़ाट थतो हतो, वीजળી गाजती हती अने मेघ गर्जना करतो हतो, जिससे धरती और आकाश की शिराई कापती थी। अने धरती अने आकाशनी अंदर વીજળીના કડાકાની સાથે છે ધરતી પણ ધ્રુજતી હતી અને આકાશની અંદર વાદળોનો ગડગડાટ પણ સંભળાતો હતો। બાર બાર સામે કી ચિત્રપટ પર વીજળી કાંતતી थी અને વારંવાર તે સામેના ચિત્ર ઉપર એટલે કે છે કે તે પડછાયાની ઉપર વીજળી કાંતતી હોય તેવો પ્રકાશ પડતો હતો। और प्रकाश का वो भयानक विस्फोटक हर चीज को नंगा कर देता था। અને એ તૂફાનનો જે એટલે કે છે કે જે प्रकाशनो जे भयानक विस्फोट हतो हरेक चीज ने छे ते शुं करी छे ते नंगी करवी एटले के छे के तेने खुली आम करी देवी। मैं खुश था कि थोड़ा दूर में बूंद मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे पर टूटेगा। अने हूँ खुश हतो कि आ बूंदे एटले के पाणीनो वरसाद छे एटले के झापटुं छे मारे सुधी पहोंचे अने मने पोतानी अंदर समावी लेशे। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। हूँ सामेथी मारे हाथनी बाहों फैलावी अने हूँ एनी सामेथी ए घटाने लेवा माटे तैयार हतो। मगर हवा अचानक रुक गई, परंतु हवा छे ओचिंतानी रोकाई जाए छे। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ की तहाँ ठिठक गया अने वधतुं तूफान छे त्यां ने त्यां रोकाई गयुं। दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। ने दूरथी जे पक्षीओ केम पोतानो जे शक्ति एटले दम तोड़वो एटले शक्ति, तो एवी रीते छे दौड़ स्पीड में हवा उड़ती आवे छे अने त्यां ने त्यां रोकाई जाए छे। बिजली की सांस रुकने लगी, बिजलीना कड़ाका रोकावा लागे छे और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा अने मारी पण शक्ति कमजोर पड़ी गई अने हूँ ज्यां आसमाननी अंदर उड़ी रह्यो हतो मारे पण नीचे नमी जवुं पड्युं। तूफान का जोम उतर गया, तूफान रोकाई गयुं छे, उसमें साथ ही मेरा भी मारो पण जोश के जुस्सो उतरी जाए छे। मैं उसका बराबर कभी नहीं हो सका, हूँ एनी सरखामणी क्यारे करी शक्यो नहीं। वे ऐसे क्षण थे जो मेरे जीवन के दो एक बार ही आते हैं। ये मारा जीवननी एवी पल छे कि जीवननी अंदर एक थी बे वार ज आवे छे। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। गुलमर्ग ने अंदर रहवा वाला व्यक्तिओ छे हरेक क्षणे कंईक ने कंईक रूपोनी अंदर ते आ जे पल छे तेनो अवश्य लाभ लेता हशे। तभी तो मुद्दत तक वह रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति की फिर खींचने वहीं ले जाता है અને કંઈક મુદ્દત સુધી કંઈક સમય સુધી ત્યાં રોકાયા હોય અને એ આકર્ષણ વ્યક્તિને ફરીવાર ત્યાં ખેંચી લાવે છે। વરના વહાં હે કે ક્યાં ખુલ્લા સપાટ મેદાન ને જ્યાં ત્યાં ગોલ્ફ ખેલી જા શકતી અને ત્યાં છે તો શું છે, એક ખુલ્લું સપાટ મેદાન છે અને ગોલ્ફ જેવી રમતો ઓનલી રમવામાં આવે છે। व्यक्ति के बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए? लेखकने प्रश्न थाय छे कि व्यक्ति वारंवार ત્યાં જવા ઈચ્છે છે, શું ખાલી ગોલ્ફ જેવી રમતો રમવા માટે? વિદ્યાર્થી, આ પાઠની સમજૂતી અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તમારે આ પાઠના જે પ્રશ્નોત્તરી છે તમારે પાકી નોટની અંદર લખવાના છે। આની સાથે સાથે તમને જે વિડીયોની અંદર જે હોમવર્ક આપેલું છે એનું હોમવર્ક પણ તમારે તમારી પાકી નોટની અંદર ઉતારવાનું રહેશે। ધન્યવાદ।